विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कल्चरल शो संस्कृति यात्रा। आज के अपने पहले सेगमेंट विशेष में हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की उस ऐतिहासिक धरोहर की यात्रा पर जहां स्टोन्स ही स्टोरी टेलर्स हैं और एक सिविलाइजेशन की कहानी बयां करते हैं। हम बात कर रहे हैं हम्पी की, जिसे प्राचीन काल में पंपा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। हम्पी भारत की विश्वविख्यात धरोहरों में से एक है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर स्थित 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हम्पी विजयनगर एम्पायर की राजधानी था। विशाल चट्टानों से सजे इस अद्भुत कैंपस में फैले फोर्ट्स, वाटर बॉडीज, टेम्पल गोपुरम्स, सिंगल स्टोन स्कल्पचर्स और प्राचीन भवन उस समय की आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस और कल्चरल रिचनेस का द्वितीय उदाहरण पेश करते हैं। तो आइए चलते हैं हिस्ट्री, कल्चर और आर्किटेक्चर को एक साथ देखते हैं फिल्म हम्पी द वर्ल्ड हेरिटेज के माध्यम से। Since the dawn of our civilization, light of the life splashed over within the flow of riverine culture. One has to travel back along the banks of a river to trace a civilization. The banks of Tungabhadra River are also punctuated with traces of the bygone era. Cruising along the river, one discovers the great seat of the Hampi civilization, which scaled its excellence in multiple endeavors from aesthetics to governance. The ruins of Hampi encompasses some 25 square kilometers, which denotes a time where even excellence excelled. The Hampi site is studded with stone boulders with a hemming of green, which conjures up the lost memory of time. Yet it never demonstrates an uncared vision of a vandalized past. Somebody said, those spreads of stones with a splash of green are grandeur of architecture without architectural references. Yet those stones in silence narrates a time which we have never seen. The sedimentation of ruins within the lap of nature paves the path of communication through stony soliloquy. Hampi, where once civilization thrived with life and aesthetic excellence, provides us a hindsight view of human endeavor, which coexisted within the Aanchal of Tungabhadra River. Today, people visit every day this Hampi site, which figures in the world maps of heritage sites. Hampi, which was built by people, offers surprises of the past to the present. Since time immemorial, Hampi remains a most talked about civilization in many travelogues of time. Hampi is no one-day tourist destination. Rather, the site is a big library of art and architecture. For the people whose quest to know looms large, be they domestic or foreign tourists. These columns of Hampi are no mere architectural grandeur, but they sing as well. In Hampi,
Mythology and history thrive together. As they say, Hanuman got birth here. The mythological sacredness is extended in historical temples, where traditional belief systems are preserved even today. Hampi remains a unique example of history being rebuilt with the help of travelogues. From the folklorist point of view, Hampi also remains the famous Kishkinda, as even today monkeys are worshipped here. The aesthetic carvings on the granite stone, to the many phases of iconographic projections, still speak volumes. Creativity scales its zenith here in Hampi. The huge and solid works in stone, depicted in iconography or in the building, provides a passage of artistic movements on stone with its lyrical flow. Excavation in Hampi remains a constant process. According to satellite images, the unexcavated parts of Hampi would perhaps cover some 100 square kilometers, and what we see today is just the tip of the iceberg. While exploring Hampi, one comes across huge elephant stables with big arches. The Queen's Bath is amongst some of the prominent referral points of the Indo-Saracenic style. The Kalyani tanks, which were discovered in mid-1980s, remains one of the scientific eye-openers on the score of the then water reservoir and water supply system. The vast expanse of Hemakuta Hills provided a space for thriving civilization since 3rd century AD to the 16th century. We travel through time to encounter the different pulses of the varied eras, sometimes interpolarized and sometimes standing singularly. The Bazaar of Hampi, though provides a barren look, yet it quickly provokes an imagination when people thrived to do serious trading of their time. Lord Virupaksha is the only living deity of Hampi, which blessed the royal sustenance then and still blesses people now. Thousands of remnants found in Hampi are kept in the Hampi Museum situated in Kamalapur, named after Kamala Devi, who was the queen of Sri Krishna Deva Rai, the famous king of Vijayanagar Empire. Sacred iconography remains the cornerstone of Hampi civilization. Numerous stone sculptures, mostly of Vaishnavite belief system, were found in several excavations which are housed in this museum. Amongst the many ornamented pillars, one comes across Vyadi, an imaginative animal with its springing posture, which is very strongly associated with a Vijayanagar style of architecture. Varaha, the Vishnu incarnation, was the insignia of the Vijayanagar Empire. Alongside, one can see hero stones to commemorate the martyrs. The sculptures, numbering thousands, indicate that the artistic tradition of creation was in the forefront of the Vijayanagar Empire. Stone sculptures of different iconographic references and relevance demonstrate the vast patronage stone sculpting had. One can find here finished stones yet to be carved. Some are half-made and some are completed. Yet they were buried beneath the soil. One wonders,
why those artistic creations were buried? Perhaps those artists wanted to preserve the creations from the hands of enemies, as Hampi remained a target of military mission from the north. While roving through the sculptures of Hampi, one comes across a unique element, that there were many hero stones which depicted the valor of the military might of the Vijayanagar Empire. Alongside, one finds the Sati stones, which can be linked and understood parallelly, the sociological phenomena of performing sati after the demise of their heroic husbands. That is why we find both sati and hero stones, which were addressed by sculptors to record the then time of the battle-stricken Vijayanagar Empire and reflected the social values of medieval India. These are some of the glimpses of today's curtain raiser on Hampi, the World Heritage Site. These are our humble efforts to familiarize Hampi monuments through microvision. Within the vastness of the clear sky, the Chandrasekhar temple stands out, near the Queen's Bath facing east, dedicated to Shiva, assignable to the 15th century AD of the Tulva dynasty. The Chandrasekhar temple complex is enclosed by the Prakara wall, with the entrance gateway towards the east. Let us explore the inner dynamics of the Chandrasekhar temple. The square and open Antarala provides an entry and is connected to the Sabha Mantapa. The central ceiling is decorated with lotus in the center, and other ceilings are plain and flat. The Sabha Mantapa is square and stands on 4 central pillars set on an elevated floor in the center. The lower and upper square blocks of the pillars are depicted with Shaivite deities. The Garbhagriha is square in shape, which is dark as it has no icon in it. In earlier times, here resided the image of Chandrasekhar. The Chandrasekhar temple is an example of the Vijayanagar style of architecture. अभी आपने फिल्म हम्पी द वर्ल्ड हेरिटेज के माध्यम से भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झलक देखी। अब बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट धरोहर की ओर, जहां आज का विषय शास्त्रीय संगीत है, जो न केवल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है बल्कि मीडियम और डिवोशन भी है। जब सुर और ताल का संगम वर्षों की तपस्या से निखरता है, तब जन्म लेती है ऐसी कला जो सीधे श्रोता के हृदय को स्पर्श करती है। आज आपको रूबरू करा रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित कलाकार पंडित शरद साठे से, जो ग्वालियर घराना के शुद्ध और समृद्ध गायकी के नोटेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक हैं। पिछले 6 दशकों से अधिक समय से पंडित शरद साठे जी शास्त्रीय संगीत की साधना में डिवोटेड है। ख्याल और टप्पा गायकी पर उनकी अद्वितीय पकड़ है और उन्हें संगीत जगत में एक विशिष्ट स्थान हासिल है। उन्होंने न केवल ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस को कंजर्व किया बल्कि और एनरिच भी किया। तो आइए उनके सुरों की इस अनुपम प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। बरसे 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 बाबा बरसे हरवा बड़ी बड़ी बूंदना बरसे में हरवा बरसे में हरवा
बरसे बसे में रवाज बड़ी बड़ी बूंदना बसे में बसे में बसे बसे में बरसे 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 सैया मोरा रे सैया मोरा रे इसका भी अलग वर्षन सैया मोरा रे सैया मोरा रे सैया मोरा रे मैं तुम्हारी सैया मोरा रे सैया मोरा रे मैं तुम्हारी वारी रे वार वार दारी सैया मोरा रे सैया मोरा रे मैं तुम्हारे सैया मोरा रे मोरा रे सैया मोरा रे सैया मोरा रे मैं तुम्हारे सैया मोरा सैया मोरा सैया मोरा सैया मोरा सैया मोरा रे मोरा रे मैं तो वारी रे वारी सैया मोरा रे मोरा रे मोरा रे सैया मोरा सैया मोरा रे मैं तो वारी वारी रे सैया मोरा रे अभी आपने सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित शरद साठे के मधुर और भावपूर्ण प्रस्तुति का आनंद लिया। उम्मीद है उनके सुरों ने आपको मंत्रमुग्ध जरूर किया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर, जहां भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका मकसद है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना
ताकि गांव की विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा सके। और इसी क्रम में आज हमारी संस्कृति यात्रा हमें लेकर चल रही है त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित मांडई विकास खंड की ओर। मांडई नाम प्राचीन काल में रखने वाले मांडई समुदाय के नाम पर पड़ा। आज के समय में यहाँ अधिकांश त्रिपुरी और बांग्ला लोग रहते हैं। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन के साथ ही मिट्टी से मूर्तियां बनाने का काम भी करते हैं। तो आइए चलते हैं मांडई विकासखंड की ओर। त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में बसा है मांडई विकासखंड, जिसे मांडवी नाम से भी जाना जाता है। मांडवी नाम यहाँ प्राचीन काल में रहने वाले मांडई समुदाय के नाम पर पड़ा। मांडई एक प्राचीन और समृद्ध समुदाय के लोग थे जो एक समय में इस क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण थे। आर्यीकरण के बाद उन्होंने बर्मन बर्मा उपनाम अपनाया और क्षत्रिय दर्जा लिया। कामरूप राज्य के पतन के बाद कोच वंश के तहत अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। समय के साथ मांडई लोगों की संस्कृति और परंपराएं लगभग विलुप्त हो गई। आज यहां ज्यादातर त्रिपुरी और बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, किंतु उनकी हस्तकला की झलक आज भी यहां के कारीगरी में स्पष्ट दिखाई देती है, जहां स्थानीय कलाकार मिट्टी, लकड़ी और बांस जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मूर्तियां बनाते हैं। मिट्टी से देवी देवताओं और लोक कथाओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जबकि लकड़ी की मूर्तियां पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के साथ सजावट के लिए उपयोग होती हैं। मूर्तिकार मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी को गूंथ लचीला बनाकर हाथों या बारीक औजारों का उपयोग करके देवी देवताओं या लोक कथाओं के पात्रों के रूप में आकार देते हैं। वहीं बांस की मूर्तियां बनाने के लिए लकड़ी को अच्छे से तराश, रंग और सजाकर तैयार किया जाता है। इन मूर्तियों का उपयोग मुख्यतः धार्मिक आयोजनों और स्थानीय त्योहारों में होता है, और यही मूर्तियां स्थानीय कारीगरों की आय का मुख्य स्रोत है। मांडई के गांवों में मनाए जाने वाले उत्सवों में घड़िया पूजा एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो बाबा घड़िया की पूजा के लिए समर्पित है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य अच्छे फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना और समुदाय की भलाई की कामना करना है। बाबा घड़िया की पूजा एक पोल के रूप में की जाती है, जिसे विभिन्न भेंटों जैसे फल, चावल और पारंपरिक वस्तुओं से सजाया जाता है। यह पूजा आमतौर पर फसल के मौसम में मनाई जाती है, जो प्रचुरता के लिए आभार प्रकट करती है और नए कृषि कार्यों की शुरुआत का संकेत देती है। उत्सव के दौरान होने वाला घड़िया नृत्य एक लोक नृत्य है, जो समृद्धि की कामना और देवताओं को धन्यवाद अर्पित करने के लिए किया जाता है, जिसमें नर्तक पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, बांसुरी और खंजरी की ध्वनि पर लयबद्ध कदमों से नृत्य करते हैं। मांडई में श्री श्री राम ठाकुर सेवा मंदिर स्थानीय लोगों का भक्ति का केंद्र है। यह मंदिर श्री राम ठाकुर को समर्पित है, जो 9वीं सदी के एक हिंदू धार्मिक नेता और भक्त थे, जिन्होंने जातीय भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने अपने 40 वर्षों में ध्यान और साधना से प्राप्त ज्ञान को जन कल्याण के लिए समर्पित किया था। मांडई विकासखंड त्रिपुरा की संस्कृति और कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां के लोग कृषि और हस्तशिल्प में प्रवीण हैं। जहां यहाँ के त्योहार समुदाय की समृद्धि और एकता को दर्शाते हैं, वही मांडई की पारंपरिक पोशाक, भोजन और नृत्य इस क्षेत्र की पहचान है, जो आज भी अपने प्राचीन रिवाजों को जीवित रखे हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सजेशंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। अगर आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह 2026 के अवसर पर दिल्ली में आर्काइव्स, परफॉर्मेंस एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात कठपुतली कलाकार पूरन भट्ट ने प्रतिभागियों को कठपुतली कला की परंपरा, उसके निर्माण और प्रदर्शन की बारीकियों से अवगत कराया। IGNC के सांस्कृतिक अभिलेखाकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान बच्चों ने अपने हाथों से पारंपरिक कठपुतलियां बनाना सीखा
और इस लोक कला की बारीकियों को निकट से समझा। कार्यशाला के दौरान आकर्षक कठपुतली शो ने बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंग बिरंगे पात्रों, जीवंत प्रस्तुतियों और लोक कथाओं से सजे इस प्रदर्शन ने बच्चों के चेहरे पर उत्साह और आनंद की चमक बिखेर दी। इस दौरान वीर योद्धा अमर सिंह राठौर के गौना अवसर का सजीव चित्रण किया गया, जिसमें गांव वासियों के उत्सव, लोकगीतों, नृत्य और सामुदायिक सहभागिता की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए लोक कलाओं, अभिलेखों और प्रदर्शन परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। IGNC के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रख्यात नृत्य गुरु, सांस्कृतिक विदुषी एवं पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह भी उपस्थित रहीं। यह भेंट भारतीय संस्कृति, कला एवं विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। IGNC के रीजनल सेंटर गुवाहाटी ने वेस्ट गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज के सहयोग से फोकलोर एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च कल्चरल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया। व्याख्यान में प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर रविंद्रनाथ शर्मा ने लोक परंपराओं से जुड़े उद्यमिता के बढ़ते अवसरों और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।